Welcome, aspirants. Welcome to Shriram IAS YT channel for this one PYQ a day series in where we discuss one previous year question of UPSC mains. This series is very significant for your answer writing program, and if you are going to target next year prelims and mains both, obviously next year civils, ये जो discussions हैं ये बहुत ही ज्यादा crucial है. तो आज ज्योग्राफी का डे है and we will discuss एक previous year question which has appeared in GS paper 1 year 2021. We will look into the question. The question was they have asked was this: what are the environmental implications of the reclamation of water bodies into urban land use? Explain with examples. 10 marker, 150 words. A very simple question, a straightforward question. They are asking you what are the environmental implications of reclamation of water bodies into urban land use. Such a common problem in Indian urban landscape, urban land use planning, urban governance. We definitely go for many a times in the last 30, 40 years, even now, we go for reclamation of lands. Reclamation hota kya hai? It is nothing but creating land where none exists. The land is underwater. Maybe it could be a lake, it could be part of the flood area of the river. वहां उसको हम reclaim कर रहे हैं, उसको we are making it suitable for uses. It could be for infrastructure creation, it could be for many other applications are there for the land. Why? Because of stress in the system. We need more and more land. Population is growing, urban cities are expanding, हमें land की जरूरत है. So the immediate casualty of that idea that we need more and more land is that we reclaim it from the water bodies. अब यहाँ पे टास्क हमारे लिए क्या है? इंट्रोडक्शन लिखना. Many times I find कि many of you have this problem कि how to write introduction. इंट्रोडक्शन लिखने में सबसे ज्यादा हेजिटेशन होती है. इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी गुड. By the way, it is the face of your answer. If it is good, it has a healthy start, the rest of the things become very easy. इसमें हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? 150 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस में जनरली यू हैव टू कीप इट वेरी शॉर्ट. यहां पे शुरुआत की जा सकती है रिक्लेमिनेशन को एक्सप्लेन करके. यू कैन एक्सप्लेन कि रिक्लेमिनेशन क्या होता है एक लाइन के अंदर. तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट डायरेक्टली, अगर हम रिक्लेमिनेशन को ना करना चाहें, देर आर मेनी वेज थ्रू विच यू कैन राइट इंट्रोडक्शन. रिक्लेमेशन को अगर हम एक्सप्लेन ना करना चाहें तो वी कैन सिंपली go on building upon the statement which they have given. Building upon the statement which they have given, we can start with how increased population pressures, the continuous quest for economic growth, गवर्नेंस रिलेटेड चैलेंजेस, ये सारे जो एस्पेक्ट हैं इनकी वजह से जो रिक्लेमेशन है इंडियन अर्बन एरियाज में, किसका? वाटर बॉडीज का. इट इज ongoing since not many decade. It is causing a lot of environmental challenges. So there are variety of ways through which you can address the demand of the question in introduction. Introduction में कई तरीके से लिखा जा सकता है उसको, कई तरीके से अप्रोचेस के बेसिस पे उसको एड्रेस किया जा सकता है. नाउ इफ यू डोंट हैव टाइम, मेनी टाइम्स दिस आल्सो हैपेंस inside the examination hall that you don't have the time to write introduction, body, conclusion format हमारे पास कई बार समय नहीं होता. Then you will address directly the demand of the question. What is the demand? They are asking कि भाई बताओ कि environmental implications क्या होंगे. और यहाँ पे जो की पॉइंट है वो है with examples. Think for a moment what could be the environmental implications. जब हम वाटर बॉडीज जैसे कोई लेक है या वेटलैंड है, इनको कन्वर्ट करते हैं अर्बन यूज के लिए, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वुड बी दैट द इन्वायरमेंटल सर्विसेज दैट दीज बॉडीज वेर ऑफरिंग will obviously will be undermined. What environmental services these bodies offer? They offer variety of services. They are a source of fresh water for our drinking needs. They go for flood control. They are like the breakwater for the storm. जब कभी
फ्लडिंग की सिचुएशन होती है, सो दे हैव द कैपेसिटी टू ऑब्जॉर्व द एक्सेस वाटर। सो एक तरीके से ब्रेक लगाने का काम करते हैं फ्लडिंग के ऊपर। तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फ्लड कंट्रोल, फ्रेश वाटर, क्लाइमेट रेगुलेशन, particularly the local climate, the microclimate regulation, और इसके अलावा दे रिचार्ज द अंडरग्राउंड एक्विफर एज वेल। तो रिचार्ज फंक्शन भी इनका होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्विफर्स का। ये इन्वायरमेंटल सर्विसेज ये ऑफर कर रहे हैं। यस, just look at, now you will come up with the examples. Look at what had what has happened with the Methi river of Mumbai. This river has been very significant in providing fresh water for drinking needs of the area. The river was very significant for flood control also in a way. तो जो मुंबई में फ्लड आए 2005 में, और मिठी रिवर का जितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो पूरा कैप्चरिंग हो गया है फ्लड जोन एरिया का, इसके बैंक्स जो है वो इरोड कर दिए गए हैं रिवर के, तो दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द फ्लड्स ऑफ मुंबई। मुंबई फ्लड्स, द मैसिव फ्लड 2005 के जो अर्बन फ्लड्स थे, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यस, बिलंदर लेक ऑफ Bengaluru, that is also a very good example. This lake used to be the backbone of the Bengaluru area. Now a lot of the area has been reclaimed of the said lake, जिसकी वजह से सारे फंक्शंस डिसरप्ट हुए हैं। चेन्नई के अंदर this area, the wasteland area, पल्ली मरकाई, that area got also got encroached upon, और उसमें भी रिक्लेमिनेशन किया गया है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स वहां पे चेन्नई के अंदर जो फ्लड्स आए 2015 में, द रिक्लेमिनेशन ऑफ द वेस्टलैंड एरियाज, द एरियाज लाइक पल्लिकरमाई, इनका जब रिक्लेमिनेशन हुआ तो इनकी वजह से ये जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं ये डिसरप्ट हुए। इस तरीके के चैलेंजेस हमें उन्हें देखने का सामना हमें करना पड़ता है। इसके अलावा व्हाट हैपेंस, इन्वायरमेंटल जो लॉस है दैट इज ए गिवन थिंग। ये सिर्फ आर्टिफिशियली या नेचुरली क्रिएटेड जो बॉडीज होती हैं, इट्स दे आर नॉट, you cannot simply see them from the point of view of only our benefit, that is the humanity's benefit. You have to see them as a what, repository of aquatic ecosystem. There are unique aquatic ecosystems जहां बहुत सारी aquatic और semi aquatic species shelter पाती है, it's their home. So when you reclaim them, obviously environmental loss, biodiversity loss, जो एक इंटीग्रिटी है सिस्टम की, वो अंडरमाइन होती है। डल लेक श्रीनगर के अंदर, यहाँ पे भी रिक्लेमिनेशन किया गया है बहुत बड़े एरिया में, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल लॉसेस भी वहां हमें देखने को मिल रहे हैं। अर्बन एरियाज के अंदर जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो है वो एग्जैबरेट होता है, क्योंकि इनको रिक्लेम कर लिया गया। व्हेन ब्लू स्पेसेस और ग्रीन स्पेसेस, इनको रिक्लेम किया जाता है फॉर एक्सपैंडिंग द अर्बनाइजेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। उस सिचुएशन में क्या होता है कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो होते हैं ये और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाते हैं। तो रिक्लेमिनेशन से ये भी इन्वायरमेंटल इंप्लीकेशन निकल के हमारे सामने आता है। प्लस ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एज ए स्टोरेज ऑफ कार्बन। तो क्लाइमेट चेंज में भी इट्स ए वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। क्लाइमेट चेंज will intensify once you reclaim the water bodies. तो जो कार्बन स्टोर है अंदर, इट विल गेट रिलीज्ड ऑब्वियसली, तो दैट विल आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली। प्लस जो नेचुरली सीवेज ट्रीटमेंट का काम ये वाटर बॉडीज करती रही हैं हमेशा से, उनको भी डिसरप्ट होता है यहाँ पे, वो भी डिसरप्ट होता है यहाँ पे। जैसे ईस्ट कोलकाता जो वेस्टलैंड्स हैं, उनका अगर हम देखें, सो इन ए वे दे आल्सो टेल्स यू दिस स्टोरी
कि जो नेचुरल सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी होती है इनकी, जो वेटलैंड्स होते हैं, जो इस तरह के एरियाज होते हैं, ये भी डिसरप्ट होती है। तो नेचुरल जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो भी डिसरप्ट होता है। ये भी इन्वायरमेंटल इंप्लीकेशंस में आएगा। तो वंस you have don't have the time, many a times this will situation will arise inside the mains examination hall, that you don't have the time की वहां पे shortage होती है, then you will directly jump into the question and will explain the fact, the issue that they are asking directly. हालांकि we should plan preparely that we have enough time to address the demands of each and every question, और ऐसा हम अपना टाइम मैनेजमेंट रखें, इतनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें कि बिल्कुल भी ये डिसरप्शन ना हो। तो वहां पे बॉडी इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का फॉर्मेट फॉलो किया जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन, एज आई सेड, देयर आर वैरायटी ऑफ वेज थ्रू विच यू कैन राइट, that depends on the style of the answer writer, and then the body naturally by and large will be, there will be points जिनमें हम लिखेंगे इस पूरे आंसर को। तो 5 to 6 पॉइंट्स विल बी देयर, और एग्जाम्पल्स जरूर लिखने हैं। कलकत्ता, बंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, ये जो एरियाज हैं, क्योंकि यहाँ पे इन दिनों पिछले कई सालों के अंदर हमने देखा है रिकरेंट थीम है अर्बन फ्लडिंग की, वाटर स्ट्रेस की, एक्सेसिव पोल्यूशन की। ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं बिकॉज आर अर्बन लैंड यूज प्लानिंग एंड इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस आर इन मेस। दिस इज द रीजन। अब सवाल आता है कि बाय द टाइम यू आर डन अवे विथ, यू विल एक्सप्लेन, एक हम टाइटल देंगे, सब हेडिंग देंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, एक एग्जांपल लिखेंगे, सब हेडिंग देंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एग्जांपल लिखेंगे। उसके बाद बाय द टाइम यू आर डन अवे विद व्हाट 130 140 वर्ड्स, तो छोटा सा हमें कंक्लूजन अगर लिखना है तो वी विल राइट ए कंक्लूजन। रिमेंबर, कंक्लूजन कैन नेवर बी द समरी ऑफ योर आंसर, नेवर डू दैट मिस्टेक। कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी समथिंग विच इज फ्यूचर ओरिएंटेड। एक सेंस ऑफ कंप्लीशन निकल के आना चाहिए कंक्लूजन के साथ। तो जो कुछ लिखा है उसको समराइज मत करना, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसा करते हैं, नेवर डू दैट। कंक्लूजन में लिखोगे कि कैसे वी नीड प्रॉपर अर्बन गवर्नेंस नॉर्म्स। ये जो अनप्लान्ड रिक्लेमिनेशन होते हैं, इनकी वजह से सीवियर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वी नीड टू हैव चेंजेस इन अर्बन गवर्नेंस नॉर्म्स, strict environmental controls, strict environmental regulations, and sustainable use of these resources। तब जाके ये जो चैलेंजेस हैं वाटर स्ट्रेस के, जो चैलेंजेस हैं पोल्यूशन के, जो चैलेंजेस हैं एक्सेसिव क्लाइमेट, जो एक्सटर्नलिटीज हैं, ये जो एक्सट्रीम नेचर ऑफ क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट हमें दिखाई देता है, इट कैन बी मिटिगेटेड। तो एक या दो लाइन के अंदर इसे हमें कंक्लूड कर देना, ये लिखते हुए दैट वी नीड बेटर नॉर्म्स, बेटर रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस। तब जाके ये पूरा जो आंसर है वो उसमें एक सेंस ऑफ कंप्लीशन निकल के आएगा। अदरवाइज यू विल ऑलवेज बी, इट विल लुक लाइक दैट यू हैव नॉट रिटन द आंसर कंप्लीटली। So this is a good format, that is introduction, body, conclusion. If you don't have time inside the examination hall, you can skip away with the introduction, write only the points. Remember, ये जो उन्होंने कहा है explain with example, this is very important. अगर इसको नहीं एड्रेस किया तो नंबर नहीं मिलेगा। हमें पॉइंट्स भी लिखना है और एग्जाम्पल्स का भी इस्तेमाल करना है, एग्जाम्पल्स को इंटीग्रेट करना है, और एक सूटेबल 2 लाइन का कंक्लूजन निकला है, योर जॉब विल बी डन। जो मैक्सिमम मार्क्स इस क्वेश्चन के लिए उन्होंने डेजिग्नेट किया होगा, दे विल गिव यू। ऑब्वियसली द आंसर राइटिंग शुड बी सच कि इट इज लेजिबल, दिखाई दे, समझ में आए किसी व्यक्ति को कि क्या लिखा हुआ है वहां पे, और प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के क्लीन नीट आंसर राइटिंग जो होती है, एग्जामिनर भी खुश हो जाता है व्हेन दे गो थ्रू दोस क्वेश्चंस। So that is how you address the demand of the question in UPSC mains. तो ये 2021 का जो सवाल था, I hope all of you understood the demand of the question and try to write this question on your own terms. Be innovative, थोड़ा यहाँ innovation की भी जरूरत हो सकती है। Be imaginative. तो जो structure है, organization है, introduction है, conclusion है, just you are free to experiment, provided that the introduction and conclusion that you are writing should be relevant to the demand of the question. That is the key thing. हर व्यक्ति की अपनी स्टाइल होती है आंसर राइटिंग, तो डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट विद द स्टाइल एंड गेट योर आंसर्स चेक।
so that you know that you are on the right direction. I'll meet you again when the time comes up again. Thank you for giving me your time.